class 10. Today we are again focusing on the important questions that are coming in the boards, and we are focusing on the first chapter, the periodic properties and variation of properties, physical and chemicals. So let's see the important questions that comes in the board examination, off and on, even in regularly and even in alternatives years. So the first question which I am discussing, that how you can calculate or how you can find out the group or the period or the valence electrons or the valency and even the nature of elements if a particular element is given to you and its atomic number is also given to you. So we'll focus few of the examples. Suppose I am taking over here calcium, and you, the atomic number of calcium is 20, right? So our first duty is to write down its electronic configuration, and if you follow up the electronic configuration, you always focus on n 2n square. So in this I am not discussing over it, but I am just telling you. So you know the first orbit contains how many electrons? 2. Then the second is 8. Then the third is having 8, and the last one is having 2. If you count it, 2, 8, 10, 18 and 2, 20. So this is K, this is L, this is M, and this is N. This you know how we write down or represent the orbits, even 1, 2, 3, 4 also. It's better you write down alphabetical orders, because alphabets you can use, because over here you are seeing we are using the numeric forms. So over here we can use the alphabets. Now you know you will, for focusing for the period, if you see, if I want to focus on the period, I have to count the number of shells. The period is always equals to number of shells. So how many number of shells are there? 1, 2, 3, 4. So number of shells is equals to 4. That your period number will be also how much? 4. So this particular element is coming in fourth period. Now if you talk about the valence electrons, you know the valence electrons are the electrons that are present in the valence shell. So this is your valence shell, है ना? So how many valence electrons are there? 2. So this way you can write down 2 over here, right? So 2 you can write down. Now about the valency, if you talk about, you know the valency, these things depend on the metals, non-metals or metalloids. So if you have not seen if you don't know how to calculate the valency, then I have made a separate video on that. You can see that also. So by that you can easily count the valency. So over here the valency is 2, because this is a particular element which is a metal, and metal lose electrons, है ना? तो कैल्शियम बेसिकली क्या है? एक मेटल है. क्यों मेटल क्यों है? मेटल्स के केस में भी if you see that outermost orbit contains either 1, 2 or 3 electrons. ठीक है, ये होता है, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो. एंड एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ 4 भी होता है. ठीक है, अब इस केस में आ जाओ. तो ये मेटल क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. दिस इज द वैलेंसी. अब ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी 2 वैलेंसी है ना, +2 होता है ना. So this way you can write down its valency. You can also tell about the nature of the element. I have written over here. ये metal हो गया है. Valency हम discuss कर चुके हैं. अब groups की बात अगर हम देखें, तो group is always explaining by the means of the valence electrons. तो outermost electrons, valence electrons कितने हैं outermost orbit में? 2. तो इसके ग्रुप कौन सा है? 2 ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, जिसको हम सेकंड ए भी बोलते हैं. बट ये ओल्ड नोटेशन है, आप आंसर 2 में ही लिखेंगे, पर अपने आंसर में आप ये भी लिखिए, लेकिन इस पर आपको यू विल गेट द मार्क्स इन दिस. सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू. वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. सपोज आई एम टेकिंग आर्गन. आर्गन क्योंकि नोबल गैस है, और you know its atomic number is 18. you know how it's to write down the electronic configuration 288. ठीक है, अब पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. KLMN 3 है नंबर ऑफ शेल्स, तो पीरियड कितना है इसका? हाउ मच? 3 इज़ देयर. नाउ यू कैन कैलकुलेट द रिगार्डिंग द ग्रुप. ग्रुप तुम्हें मालूम है, जो नोबल गैसेज होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये किस ग्रुप में आएगा? 18 ग्रुप, या हम इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं. ठीक है, यू विल राइट डाउन 18 ग्रुप. तो पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया. अब नेचर ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो ये नोबल गैसेस है. ठीक है ना? क्यों नोबल गैसेस है? बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8. तो इसीलिए नोबल गैस है. अब नाउ टॉक अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 8. ठीक है, 8 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी, अब देखो वैलेंसी डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन कौन कितना लूज़ कर रहा है, कितना गेन कर रहा है. अब 8 हैं,
ऑटोमेटिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स कंप्लीटेड, सो इट विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नॉट टॉक अबाउट सम अदर एलिमेंट, ये फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं 2,7 है। अब ये इसीलिए लिया है बिकॉज इट्स अ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में ये याद रखिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आइदर 5 हो या आपको 5 दिखे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इज़ द एक्सेप्शनल केस, 4 वाले भी होते हैं जो कि आपको 4 में भी है अवेलेबल, तो आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन 5, 6, 7 बेटर है। ठीक, तो 7 ही है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब पहले तो इसका यू विल कैलकुलेट KL। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ शेल्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इज़ हाउ मच, 2। तो पीरियड कितना हो गया इसका, पीरियड विल बी 2। नाउ ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है 17 ग्रुप में होते हैं, सो इट इज़ कमिंग इन द 17 ग्रुप, और जैसे इसको 7A भी बोलते हैं, लेकिन आप आंसर 17 ग्रुप लिखेंगे। राइट, नाउ नेचर ऑफ द एलिमेंट, अगर अच्छा पीरियड देख लिया, ग्रुप देख लिया, नेचर ऑफ एलिमेंट इट इज़ अ नॉन मेटल, आपको पहले ही मैंने बताया है क्या ना, क्यों नॉन मेटल है, सो यू विल राइट डाउन नॉन मेटल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7, तो यू विल राइट डाउन 7। नाउ वैलेंसी इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो 8 बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन्स ओनली 1, तो देना बेवकूफ़ी है, इट्स बेटर यू कैन आस्क 1, बिकॉज इफ़ यू विल गिव यू हैव टू गिव 7 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स बेटर यू टेक 1 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस होते हैं आपके। Focus on the definition part. I've already mentioned you the period number and the group number is all important, but there are other also, no, you know, there are different periodic properties. Now you remember all the periodic properties: atomic size, ionization energy, electron affinity, electron negativity, then non-metallic and metallic your characters. So definitions are also asked, the variations of these periodic properties in groups and period, that is also asked. Then in terms of certain tabular form also questions are asked, and certain differences or reasonings are asked, like one of the example I am telling you that they says that a reasoning की अगर हम बात करें इसको, how you can put it in reasoning. So I am writing one question. Now if this question has been asked, neon has a larger atomic radius in inert gases. You know there are many inert gases ना, हीलियम है आपका, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है। ठीक है, और आपका अगर आप देखें तो इसमें बोला गया कि जितनी इनर्ट गैसेस है उसमें नियॉन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, वाई इट इज़ मोर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो देयर इज़ अ रीजनिंग अराइजेज दैट यू नो दैट दीज आर नोबल गैसेज, देयर आउटर मोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो आपका आंसर होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। वो तो सब में ही होता है, कोई एक्सेप्शनल तो है नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपको याद हो, रिजल्टिंग इन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, द इफेक्ट, आई विल एक्सप्लेन यू, द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर पुल ओवर द valence electrons is not seen. This will be your answer. अब इसको समझो। देखो अगर कोई पर्टिकुलर तुम्हें मालूम है नोबल गैसेस जो हैं उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उनका कंप्लीट होता है। अब नियॉन का अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये भाई एक नोबल गैसेस है। ठीक, तो अब पॉइंट यह है यहाँ पे जो आउटर मोस्ट फिल होने की वजह से यहाँ पे एक बात देखो, न्यूक्लियस जो है हमेशा अपना न्यूक्लियर पुल लगाता है, किस पे लगाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर ये न्यूक्लियर पुल ज़्यादा लग जाए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और ये जो एटॉमिक साइज़ है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा, है ना। लेकिन ये न्यूयॉन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या, उसकी वजह से जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अट्रैक्शन होता तो ये पास आते, अभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है वो ज़्यादा लग रहा है कंपैरिजन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस में जो बेसिकली लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। अब किसका रिपल्शन फोर्स आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो पुल है वो क्या हो जा रहा है आपका
कम हो जा रहा है, ठीक है, ऑन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज़ जो है वो कंपैरिजन अदर जो नोबल गैसेस हैं उनमें उसका ज़्यादा रहता है। क्लियर हुई? Now one more question you can see, cations K plus है ना, it's smaller than its parents neutral atom। अब देखो K plus है और K है, इसका 19 है ना। अब इसका एटॉमिक नंबर 19 है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स देखी जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 18 हो जाएगा, और यहाँ तो एज इट इज़ है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑलवेज यू आर टेकिंग आउट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। याद है आपको? मालूम है ना कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट बनाते हैं उसमें क्या चीज़ मूव कर रही होती है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। So please make sure that when you are writing the electronic configuration you have to calculate the electrons first। तो एटॉमिक नंबर आपको दिया रहता है, वो बात अलग है कि हम लोग करके जल्दी से बता देते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि एटॉमिक नंबर से आप प्रोटॉन निकालेंगे, फिर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ यू फोकस ऑन इट्स 2881 है, और यहाँ पे क्या है 2,8,8, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ तुम्हें कितने दिख रहे हैं? KLM अगर आप निकालेंगे तो ओवर हियर यू आर गेटिंग 3, एंड ओवर हियर इफ़ यू सी नंबर ऑफ शेल्स हाउ मैनी यू आर गेटिंग? KLMN, हाउ मैनी यू आर गेटिंग? 4। अब बताओ, खुद ही देख के बता दो किसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है। तो एटॉमिक साइज़ ऑफ पेरेंट एटम बोलेंगे ना, इसी से निकले हैं कैटायन, इसीलिए पेरेंट एटम बोल दो। पेरेंट न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल क्यों बोला है? कोई चार्ज लगा है इस पर? ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट्स वाई इट इज़ पेरेंट न्यूट्रल एटम। और ये इसका कैटायन बना, पॉजिटिव चार्ज लग गया तो कैटायन बन गया। इट्स ओके विथ यू ऑल? Next head comes children, trends of periodic properties in groups as well as in periods. So I am not discussing here, I am just talking you about it because I have already made the detailed videos on this, so you can just watch that videos and you can see how you have to follow up the trends of these properties in groups as well as in periods। एक ये भी क्वेश्चन होता है, आपको मालूम है ना इंक्रीज एंड डिक्रीज का आता है। चलो एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, हम एटॉमिक साइज़ ही पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ को ही लेके चलते हैं। So when you talk about atomic size, we'll focus on the atomic size and we'll see its variation in your periods as well as in groups. Let's start with the period. I'm just giving you a small idea because again I'm telling you detail of it we have already discussed. So if you move across the period, you know the atomic size was decreased, or it decreases in the periods when you move from left to right. So why it was decreasing? If you remember the factors, that is the number of shells. Number of shells remains same, and nuclear charge, this thing I have already mentioned you, the nuclear charge is whether you are moving in a period or in a group, it always increases, ठीक है, ये हमेशा increase ही करता है। तो ये चीज़ आ रही है। तो अब बेसिकली क्या है, एक सेम हो रहा है नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली और एटॉमिक साइज विल डिक्रीज़। अब इसी को अगर हम ग्रुप में देखें, है ना, इफ़ यू फोकस ऑन ग्रुप, तो ग्रुप में अगेन यू विल सी ऑन द सेम फैक्टर्स, द नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप्स में इंक्रीज़ करते हैं हमेशा, याद है। और न्यूक्लियर चार्ज अभी मैंने बताया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर चार्ज के वजह, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो बेसिकली डिक्रीज़ होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब एक तरफ इंक्रीज़ आएगा, एक तरफ डिक्रीज़ आएगा, तो नंबर ऑफ़ शेल्स डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज। तो उस कंडीशंस में ग्रुप में आपका क्या आता है, ग्रुप में एटॉमिक साइज़ आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स, हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज डिटेलिंग ऑफ इट आई हैव मेड द सेपरेट वीडियोज़ एंड आई हैव डिस्कस ओवर देयर, तो आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर हियर। Now children, we'll focus one question from your book. This is a table is being given. I have already mentioned you just now कि there are questions which comes in the tabular form also. तो एक टेबल दी रखी है, उसमें अल्फ़ाबेट्स दी रखी है। ये अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल मत सोचिएगा कि एलिमेंट्स के ये सिंबल्स हैं, ये नॉर्मल जो आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ABCD, दैट अल्फ़ाबेट्स इज़ बिन गिवन टू यू। और ऊपर ग्रुप्स लिखे हैं, यहाँ आपके पीरियड्स मेंशन है। बेसिकली आप देख सकते हो 4 पीरियड्स मेंशनड है, और ग्रुप्स में आपको देखो ये इधर 2 थे जहाँ एल्किली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, और यहाँ पे जो वो सब आपके हैलोजन्स और नोबल गैसेस वाला पोर्शन है, वो बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मिसिंग है।
ठीक है, तो थोड़ा सा आप जज करिए कि आपको क्या दिया रखा है. नाउ दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दे आर गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑल्सो दैट स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम जे. ठीक है, अब आपको हमें यहाँ देखना है जे हमें कहाँ दिया रखा है, ये दिया रखा है. ठीक है, जे इज़ बीन गिवन ईयर और उसके ऊपर जो है वो 5 लिखा हुआ है आपका. ठीक है, सो 5 इज़ बीन मैंशनड ओवर ईयर. सो लेट्स फोकस ऑन इट कि हाउ वी कैन डू. नाउ लेट्स कम टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम जे. तो जो ये आई हैव ऑलरेडी शोन यू, इट वॉज बेसिकली इन दैट टेबल, इट वॉज कमिंग इन द 5th ग्रुप. ठीक है, तो ग्रुप जो होता है वही आपका बैलेंस मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो आपका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 5th ग्रुप में था ये पर्टिकुलर जे. आप जब बुक में देखेंगे पेज नंबर 17 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2016 पे हम फॉलो अप कर रहे हैं और उसका 4th क्वेश्चन है ये, उसका फर्स्ट पार्ट है. तो इसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसके ऊपर जो है ग्रुप लिखा हुआ था वो था 5. So that's why the valence electron was 5. Now the next is which element shown forms ions with a single negative charge. इसमें कौन ऐसा होगा जिसके पास सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा. तो फिर तुम याद करो जैसे हैलोजेंस होते हैं, है ना, हैलोजेंस पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसमें आपकी बुक में अल्फ़ाबेट जो दिया रखा है वो एम है. एम जो है वो बेसिकली फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप इस गलत फहमी मत रहिएगा कि आप है ना एम उठा के को फ्लोरीन लिख दें. आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे बिकॉज द आंसर्स you have to give in this order only because they have given you the alphabets. Now chal, there is one more question given in this, which metallic element is more reactive than R. यहाँ पे आपको पीरियड्स दिए और ये ग्रुप 1 दिया रखा है. ठीक है, मतलब एल्कली मेटल्स हैं. अब ये R यहाँ दिया रखा है. अब बेसिकली पूछ रहा है कि कौन R से ज़्यादा मेटालिक होगा एलिमेंट. अब Q भी दिया रखा है और T भी दिया रखा है और ये ग्रुप का कंडीशन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप है. व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द मेटालिक करेक्टर्स ऑलवेज इंक्रीजेस. तो R से ज़्यादा किसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा, T का. और कम अगर पूछा जाएगा तो किसका होगा, Q होगा. ठीक है. Now children, we'll focus other questions also, like what is been asked, fill in the blanks, select the correct answers, match the table, arrange the following as per instructions in the brackets. Most of the time in class 10th, whenever they are asking the questions like fill in the blanks, select the answers or match, they are giving you the options over here. So it's in this you remember that 40% of the questions contains the optional portion, right? And 40 to 30% though 100% you have the options, right? So let's focus on this question because children do get confused in this part. The arrange the following as per instructions in the bracket. Suppose I am giving you one question over it, like they have given you, it's from your book, helium, argon and neon is being given to us, and they have writing increasing order of the. Now let's focus on it. So they have written increasing order of the number of electron shells. Now please, if you remember, I have already mentioned you from the beginning that till elements till calcium, you should know their atomic numbers. They will not give you the atomic numbers. Even they have asked you to learn the elements up to period 3, so that you should know, but I prefer that please go through the calcium also. ठीक है. अब ये सब एलिमेंट जो है आपके पीरियड कोई 2 में आ रहा है, कोई 3 में आ रहा है, कोई मतलब 1 में आ रहा है, तो प्लीज़ इट्स योर ड्यूटी टू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इफ़ यू रिमेंबर हीलियम एटॉमिक नंबर्स का 2 था तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आ गया. के मतलब बेस्ट आंसर है कि अगर आप इनके एटॉमिक नंबर्स को याद कर लें तो उससे आप ईज़िली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं. ठीक है. अब आपको सिंपल इज़ दैट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स. अब देखो ये है KLMKNL. अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल्स कितने आ रहे हैं, 1. यहाँ कितना आ रहा है, 3. यहाँ कितना आ रहा है, 2. अब आपको पता लग गया आंसर. आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी पहले हीलियम आएगा, उससे ज़्यादा ग्रेटर कौन आएगा, नियॉन आएगा, उससे ज़्यादा ग्रेटर कौन आएगा, आर्गन. इफ़ यू आर राइटिंग दिस आंसर इन दिस मैनर चिल्ड्रन, यू विल गेट 0 इन दिस वर्ड, बट यू हैव टू या तो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा के ही आपको, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो भाई सबसे कम आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, एंड दिस साइन शुड बी देयर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आंसर हाउ यू आर राइट, यू मस्ट बी नोइंग द आंसर बट यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री. तो ये इनको फोकस करिए आप. ठीक है. Now there is one more question that is asked, name or state the following. वैसे ज़रूरी नहीं यही है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट.
So first question is noble gas having duplicate arrangement of electrons. तो you know name is been asked. अब state भी है, तो अगर अब यहाँ पे आप हीलियम लिख देंगे सिंबल उसका, और अगर ये भी लिखेंगे तो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि स्टेट दिया रखा, नेम भी है. खाली नेम होता तो आपको हीलियम लिखना पड़ता. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ दोनों आंसर्स लिखे हैं. आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या आंसर लिखना है. नाउ दे हैव गिवन यू मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 एंड अ नॉन मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 2. राइट, सो लेट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पीरियड 3. अगर आप इसको देखेंगे सोडियम को, अब मैंने वही कहा ना, आपको याद तो करना ही है, अपने आप ही याद करना है. तो ये बेसिकली अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 281 है ना, KLM, तो आपको समझ में आ जाएगा. नंबर ऑफ शेल्स इसमें 3 है, इसका मतलब थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है. तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है आपका, सोडियम. आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. सेकंड है नॉन मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 2. अगर आप कार्बन को रिमेंबर करें तो कार्बन भी आपका 2,4, ये भी नॉन मेटल एक्सेप्शनल केस था. और अगर आप फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अश्योरेंस नहीं दी रखी कि आपको यही लिखना है, क्योंकि कार्बन को नॉन मेटल में गिना गया है एंड फ्लोरीन भी, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं. आपने दोनों ही लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, पर पूछा गया है एक, तो आप एक ही लिखिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो तो दोनों लिख दीजिए. जस्ट सी देयर आर 2 आंसर्स ओवर हियर. ठीक है, नॉन मेटल्स में आपकी फ्लोरीन भी है, आप कार्बन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स में आ रहा है. एंड प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज ऑन इट, एंड इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग राइट डाउन बोथ द आंसर्स. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड, and even lots of reasoning part is also been coming in this chapter, and this is the first chapter. It's a very important chapter because most of the chapters are connected or related to this chapter, and in this chapter please make sure 6 to 7 marks will come from this chapter. You cannot ignore this chapter. If you are leaving this chapter, you think that it's very difficult and we leave it, then you are doing a biggest mistake. So please don't ignore this chapter, learn it properly. Very specific questions are asked, और मतलब भाई 10 years में भी देखें आप, 20 years में भी देखें, repetitions are there. So even though if you learn the questions from your back questions, na, year wise questions and additional from this book, then also you will get the full marks from here. But you should know how to write down the answer in the proper manner. That is the biggest thing which you have to keep it in mind, right? And even few things please remember when you are writing your match the answer. ठीक है ना, मैच द आंसर होता है, तो मैच में है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी रहती है. अब सपोज़ करो फर्स्ट का आंसर जो है, सपोज़ करो हीलियम है और उसका ऑप्शन ए दिया रखा है, या सपोज़ करो बी दिया रखा है, तो प्लीज़ राइट डाउन दिस इंटायर थिंग. हीलियम भी लिखो, ये कभी कभी बाय एरर आपने गलत अल्फ़ाबेट यहाँ लिख लिया और आप 1 लिख के वो अल्फ़ाबेट सपोज़ करो आपने ए लगा दिया, तो यू विल गेट 0. लेकिन आप आंसर लिखे होंगे तो बोर्ड वाले आपको इस पर यू विल गेट मार्क्स इन दैट, even though you have written a wrong alphabet over here. So that's why I am telling you कि please when you are writing the match answers, write the correct answer. Along with that the alphabets will be given to you, so that alphabet also you write down. So manage your time in this manner that you could complete your answer. Even in the fill in the blanks portion also I am telling you how to write down. जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में सपोज़ करो कोई ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 2 ब्लैंक्स दिए रखे हैं, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं हम आंसर कैसे लिखें. अब सपोज़ करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मेटल्स आ रहा हो. ठीक, अब आप कंफ्यूज कि हम क्या करें. अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मस्ट बी हैविंग ए नंबर 1, तो यू कैन राइट डाउन इन दिस मैनर ऑल्सो, जैसे मैंने लिखा है, या फिर सिंपल इज़ दैट इलेक्ट्रॉन कॉमा मेटल्स. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर. यू विल गेट द टीचर विल अंडरस्टैंड ये फर्स्ट ब्लैंक है, लेकिन आप सपोज़ करो आपने मेटल को यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दिया, देन यू विल गेट 0, देन यू विल गेट 0. सो होपफुली you have understand that, and please children work hard and focus on your studies, and whatever videos I have done earlier, even now also I am sharing, please focus on them.